Okay. Uh, anybody else? So voice is clear? बेटा आवाज आ रही है? सर इको प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दोनों माइक खुल रहे हैं सर से। दोनों माइक खोले। एक मिनट। Now it is better? Yes sir. Okay. So you have class test tomorrow. Okay. So you guys are ready? टेस्ट के लिए रेडी हैं आप लोग? लिख दीजिए, बता दीजिए कुछ। बेटा टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? ओके। Okay, only 12, 11. Total number of students are very less in the class. In the last class में कितने थे बेटा क्लास बच्चे, जिससे पहले वाली क्लास थी आपकी? बेटा वॉइस आ रही है मेरी? आकाश जी सर आ रही है, वॉइस आ रही है। इससे पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे आपकी क्लास में? ऐसे होंगे सर 18 के आसपास। इतने कम कैसे बच्चे हैं? 11, 3 तो मैं ही हूँ इसमें। जी सर। Okay, so let's revise which we have studied in the last class. Then we will discuss some new topics also. Okay. So quasi-aesthetic process is clear to you? Response? Respond, beta. Quasi-aesthetic process is clear to you? Okay. So I have already explained in the last class also the quasi-aesthetic process. So quasi-aesthetic process is a very slow process. Okay. After that, we have discussed the reversible process. So first thing, the process. You can also describe a process like that. If you are going somewhere, if you are going to somewhere, then if you consider yourself as a system, then your state is changed. So if you are in, suppose you are in MIT, okay, and you want to go Metro Plaza, then you can go through the Bagpat bypass road, or you can go via Partapur. Okay, so in both the processes you reach in the Metro Plaza, but the path follow in the both processes are different. Okay, so one second, sir. Sir, okay. So in the same in the between two states we have taken two different paths. Okay, so this is the real life example. This is not related to thermodynamics, but we can relate this to state and process. Okay, so after that we have discussed the reversible process. So what is reversible process? Can anybody in the class define reversible process? Which process is reversible? When we say a process is reversible, what are the conditions for reversible process? Hers, can you explain? Hers, are you there, Karan? सर, yes sir.
Can you explain what is reversible process? सर एक Yes, तो sir. सर पाथ सेम होना चाहिए सर, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2 तक का, मतलब हाँ। जिस पाथ से हुआ है पहले जो आई है वही सेम पाथ होना चाहिए। और सर जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क और हीट है वो सिस्टम और सराउंडिंग की जीरो होनी चाहिए। Net effect of work and heat transfer surrounding सिस्टम से वो जीरो होनी चाहिए सर। जीरो होना चाहिए। तो जब भी कोई सिस्टम जो एक पाथ से दूसरे पाथ में जाएगी और जब वापस रिटर्न होगी तो सेम पाथ फॉलो करेगी, देन प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम MIT टू मेट्रो प्लाजा एंड वी आर टेकिंग द पाथ by Bagpat bypass road. Okay, then if we want to reverse this process, we are coming back to MIT from Metro Plaza. Then we take the same path by Bagpat bypass road. Okay, if we are returned to the MIT by the route of Partapur, then our process is not reversible because the system follow not the same path. If system follow the same path when the process is reversed, then only we can say process is reversible. Apart from that, system and surrounding must be in the net effect on the system and surrounding must be zero. Suppose you have a bike, okay, and from the bike, with the help of bike, you are going to Metro Plaza from MIT. So you are taking the same path when you reverse the process. So you are going to Metro Plaza with bike and you are coming back to the MIT with bike. So this process is a reversible or irreversible? Response? ये process कैसी होगी? Can you repeat it? Yes. Again. Yes. Yes. Anuj? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? Irreversible. Manish, why this process is irreversible? हेलो Yes. सर एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चन आपने पूछा था। मैं कह रहा हूं कि हम बाइक से MIT से मेट्रो प्लाजा गए बाय बागपत बाईपास रोड, ओके, एंड विद द सेम पाथ, जिस पाथ से हम गए थे उसी पाथ से वापस मेट्रो प्लाजा से MIT वापस आ गए, ओके. सो दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? सो इट इज वेरी करेक्ट. क्या हो रहा है, मनीष कह रहा है कि फ्यूल का लॉस हो रहा है सर, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और इन्वायरमेंट में एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही हैं, ओके. सो जो एक एनर्जी थी आपके सिस्टम की वो कम हो रही है एंड द हीट इज रिजेक्टेड इन द इन्वायरमेंट, और जब आप रिटर्न कर रहे हैं तब भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और तब भी हीट डिसिपेट हो रही है टू द इन्वायरमेंट. सो इन दिस प्रोसेस वी हैव फॉलो द सेम पाथ, but the net effect on the system and surrounding is not zero. Then we cannot say this process is a reversible process. So for the reversible process we have two conditions: system should follow the same path, and when the process is reversed, the system and surrounding reach to its initial state. It means that there is no effect on the system and surrounding, or no trace on the system and surrounding. Okay, so beta ek Manish aapne ye kya likha hai, quasi-static plus no energy loss. मनीष आपका माइक चल रहा है बेटा? मनीष, ओके, दैट इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन. ओके, क्वासी-स्टैटिक विद नो एनर्जी लॉस ऐसे नहीं बोलेंगे. क्वासी-स्टैटिक अगर प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, वर्क, मगर आपको वर्ड लिखना पड़ेगा frictionless quasi-static process. Okay, only frictionless quasi-static process can be represented as a definition. Working on laptop, पता नहीं क्या लिख रहे हैं. Okay, so let's continue this lecture. So most of the process in the universe are irreversible due to the friction. Okay, so friction is the main responsible for irreversible processes. Okay, so let's move to the new topic of today, that is macroscopic and microscopic approach. So the new topic is macroscopic and microscopic approach. It is well known that substance
consist of large number of particle called molecule. तो कोई भी जो भी मैटर, किसी भी मैटर की बात करें, किसी भी सब्सटेंस की बात करें, तो वो क्या होगा? So if we are consider any substance or any matter, the matter will be made from the particles, and which we call molecules. So in a matter or in a substance there are a large number of molecules, okay, and the behavior of the substance depend upon the behavior of these particles or molecules. So if the particles are closely spaced, the matter will be solid. If they are little bit apart, then it is liquid. If the particles are far away from each other, then it will be gas. So we already know that any substance is made from the. सर बेटा यहाँ पर अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं इसको फिक्स करता हूँ जरा, ठीक है? आप वेट कीजिएगा, मिनिमम 2 मिनट्स लगेंगे, ओके? सो स्टे कनेक्टेड. Okay. Now screen is visible? Yes, sir. Okay. एक्चुअली बगल वाले केबिन में एक और सर क्लास ले रहे थे, तो उनकी आवाज से डिस्टरबेंस हो रहा था. सो ओके. So the new topic is macroscopic and microscopic approach. Okay, so we have discussed that a matter or a substance made by the molecules, and there are large number of molecules exist in a matter or a substance. So matter is made with a molecule, and there are large number of molecules. So if you are talking about a small volume, that is 1 mm cube, it contains 3 into 10 to the power 16 molecules. So that much large number of molecules exist in a matter. Okay, and the properties of a substance naturally depend upon the behavior of these particles. So you have also studied the kinetics of gas in chemistry, that the behavior of any matter is depend upon the molecule. These molecules are
moving inside the matter randomly and they are collide with each other. So depending upon their velocity, their energy, the properties of a system defined or properties of a matter defined. Okay, so for example, these are the molecules of the gas. So we have taken a small area in a system. So मान लीजिए किसी सिस्टम के अंदर गैस भरी है और ये वाला एरिया जो है हमने बहुत छोटा सा एरिया लिया है, इसको बहुत ज्यादा जब जूम करेंगे तब हमको ये पिक्चर दिखाई देगी. वी कैन नॉट सी मॉलिक्यूल्स इन द फ्रॉम द नेकेड आईज. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? लिख दीजिए, बता दीजिए, कुछ रिस्पॉन्स तो कीजिए. यस सर. ओके, सो यहां तक क्लियर है. कोई भी मैटर होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा वो मॉलिक्यूल से बना होगा. जो सॉलिड होगा उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जिसकी मैं बात कर रहा था वो बहुत छोटा होगा, बट जो गैस होगा उसमें थोड़ा ज्यादा हो, जो लिक्विड होगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा और गैस में सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, अगर हम ये सॉलिड होता तो ये क्लोजली स्पेस्ड होते एकदम. ओके, so when we are studying any system or we are doing analysis of any system in thermodynamics, we have two approaches. First one is macroscopic and second one is microscopic. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसी सिस्टम की एनालिसिस करने में कि हम कौन सी अप्रोच लगाएं. फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. देखिए जैसे नाम से ही क्लियर है, मैक्रोस्कोपिक. सो मैक्रोस्कोपिक हम क्या करते हैं, एक बड़े लेवल पे चीज को देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो एक बड़े लेवल पे, और जब माइक्रोस्कोपिक में हम उसी चीज को, उसी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना हो तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल में जाके घुस के देखेंगे. ठीक है, तो जैसे माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, तो यहीं से नाम से क्लियर हो रहा है कि इन दोनों स्टडी में क्या होता होगा. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल. सो जो भी प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी क्या क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है, ये सब किस पे डिपेंड कर रही हैं, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटीज पे, कि कैसे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स हैं सिस्टम के अंदर. ठीक है, अब अगर आपको प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है तो आपके पास दो अप्रोच है. फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक, सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. सपोज वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? एनीबॉडी इन द क्लास? व्हाट इज प्रेशर? हाउ वी डिफाइन प्रेशर? So pressure can be defined as force per unit area. Force per unit area. Okay, so generally it is defined as normal force per unit area. Okay, or thrust per unit area. Okay, so how can we calculate pressure for this system? So suppose we have this system and these are the molecules of the gas and we want to calculate the pressure. So we have two approach, macroscopic and microscopic. Okay, so in the macroscopic approach what we do, हम क्या करेंगे, यहां पर इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे प्रेशर गेज होता है जिससे हम टायर की हवा नापते हैं, जैसे हमने देखा है. ठीक है, उसको अटैच करेंगे और हमको प्रेशर की रीडिंग मिल जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ अप्रोच इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ओके, इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे. हम मॉलिक्यूलर लेवल की देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितनी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसका एक मॉलिक्यूल का मास कितना है. ठीक है, जब इसका मॉलिक्यूल का मास पता चलेगा और मॉलिक्यूल की वेलोसिटी पता चलेगी तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, उसी एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर से. ठीक है, अब उस एनर्जी की वजह से जब ये यहाँ पर वॉल पे कोलाइड करेगा तो कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा और वहां पर कितना एरिया होगा, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया. अब ये तो रही एक मॉलिक्यूल की बात. इसी तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इस वॉल पे जब वो जाके फोर्स के साथ लगेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है. प्रेशर क्यों होता है एक्चुअली? प्रेशर जब अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है तो गैस क्या करेगी, उसकी वॉल पे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है अंदर सिस्टम के अंदर. हम कह रहे हैं इस कंटेनर के अंदर हाई प्रेशर है. क्यों? क्योंकि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, सिलेंडर की, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं ये हाई प्रेशर पे है. अगर लो प्रेशर पे होगी तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होगा, उनकी वेलोसिटी आपस में रिलेटिवली लो होगी, और जिसकी वजह से जब वो कोलाइड करेंगे ऑन द with each other and on the cylinder wall, they will produce less force and due to which there is low pressure. That is clear? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर हूं मैं? ओके,
So we have two approach, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक. यहां समझ में आया कि मैक्रोस्कोपिक व्यू में कितना आसान था. हमने सिर्फ एक क्या लिया, प्रेशर गेज लिया, अटैच किया, एंड वी हैव द रीडिंग ऑफ प्रेशर. इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वी आर गोइंग टू इनसाइड द मॉलिक्यूलर लेवल एंड वी आर taking the behavior of the molecules. So on the basis of behavior of the molecule we are predicting the properties. Okay, so first let's take the macroscopic approach. अब इसमें जितना समझने का काम था वो सिर्फ इतना ही था. Okay, so in this approach a certain quantity of matter is considered without taking account the event occurring at the molecular level. So in this microscopic approach हमको molecular level पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब देखने की जरूरत नहीं है. In other words, the approach to thermodynamics is concerned with the gross or overall behavior. तो हमको molecular level से कोई मतलब नहीं है, हम ये देख रहे हैं इफेक्ट सिर्फ overall इफेक्ट क्या पड़ रहा है. Okay, and this approach is also known as classical thermodynamics. So whenever we follow this approach in the analysis we say we are doing work in the classical thermodynamics. The macroscopic approach to the study of thermodynamics that does not require the knowledge of the behavior of individual particle. तो हमको individual particle के behavior से कोई मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, overall behavior देख रहे हैं कि पूरे system का overall behavior क्या है. Okay, it provides a direct and easy way to solution of engineering problem. So it is obvious that we want to measure the pressure and we easily measure the pressure. So it will provide easy way to solution of any thermodynamic problem. Okay. What is microscopic? In microscopic approach में क्या है? We are considering large number of discrete particles, which is known as molecules. So we are considering the behavior of these molecules. So these molecules have different velocity. They are moving here and there. They are moving in a random motion. Okay, so they have random velocities in different directions and they are collide with each other and exchanging their energy. If they have the velocity, then they have the kinetic energy, and if they are rotating in their axis, then they are also rotating energy. If there can be a chemical energy, there can be a other magnetic or some type of energy also, okay, in the molecules. So when we are doing the study on the basis of microscopic approach, then we consider the behavior of these molecule and this velocities and different energies. Okay, and apart from that, these energy and velocities are kept on changing with time, because some molecules moving in some direction with some different velocity, and when it collide with another molecule, its velocity and direction will change. So in this type of approach is known as microscopic approach, and this is also known as statistical approach, because we apply the statics, which is what is after the calculation we are taking the average, mean, mod, something like that. So this approach is known as statistical approach. So these are the differences between macroscopic and microscopic. So I have already explained each and every point, and this table is made only for your reference. Okay, यहाँ तक clear है बेटा? माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक में क्या अंतर है? ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन. मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जब ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इतनी टफ है तो ये लगती कहां पर है? कौन यूज करेगा इसको? इतने जब मैं बोल रहा हूं, इवन अ स्मॉल टीनी वॉल्यूम, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दीज आर 3 into 10 to the power 16 molecules in a tiny volume of 1 meter cube, 1 mm cube. तो इस अप्रोच को कौन अप्लाई करेगा? ये कहां पे बेनिफिट है इसका? एनी आइडिया? कोई बता सकता है बेटा? दिव्यांशु, आर यू देयर? दिव्यांशु? ओके, यस सर. यहां तक क्लियर है बेटा आपको? यस सर. यहां तक क्लियर है? तो ये अच्छा बताइए, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है? सर जो टाइम एवरेज बिहेवियर मॉलिक्यूल का था वो अंडर कंसिडरेशन हो. क्या हो? सर जो उसकी
मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है, कंसीडर नहीं कर रहा है। ओके, जो मॉलिक्यूल के बिहेवियर को कंसीडर नहीं कर रहा है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। और माइक्रोस्कोपिक क्या है, जो मॉलिक्यूल्स के जो बिहेवियर है उन पे डिपेंडेंट है, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक। ओके, सो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि किसी कंटेनर में गैस है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर, देन इफ यू वी आर सिंपली मेजरिंग द प्रेशर बाय विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज, देन दिस इज द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, पहले उनका फिर मास कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उससे कितनी काइनेटिक एनर्जी, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, फिर एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे प्रेशर निकाल रहे हैं, फिर सबको जोड़ के सम कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो इस टाइप की अप्रोच माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाएगी। ठीक है, अब होता क्या है जनरली, सपोज वी हैव अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। हमारे पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में कोई गैस है। इफ यू आर ट्रांसफरिंग द हीट, अगर हम उसको हीट ट्रांसफर करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, कोई बता सकता है? माइक खोलिए बेटा, इंटरेक्ट कीजिए तभी हो पाएगा। एनीवन फ्रॉम द क्लास? आकाश? यस सर, आकाश प्लीज बोलिए। एक बार सर एक बार। रिपीट क्वेश्चन कर दीजिए। जी सर। वी हैव अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ओके, उसके अंदर कोई गैस फिल है। ओके, एंड sir. वी आर ट्रांसफरिंग सम अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम, यानी कि हमने उसको कुछ हीट ट्रांसफर करी, जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर कोई गैस है, तो गैस क्या बिहेव करेगी? सर गैस सर एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। गैस एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। आपको कैसे पता? सर मतलब सर वो हीट अप होएगी ना, जो तो सर उसके मॉलिक्यूल when- सर वो दूर दूर भागेंगे। हाँ, according to the kinetic theory of gases, the temperature is directly proportional to the kinetic energy of the molecules. तो उनकी velocity increase कर जाएगी, और velocity Yes, increase sir. कर जाएगी तो वो ज्यादा force exert करेंगे, तो उसका pressure rise करने की कोशिश करेगा, तो उसको compensate करने के लिए वो क्या करेगा, expand करने की कोशिश करेगी। Okay, that is clear. So यस सर। ये knowledge कहाँ से आई? ये knowledge आई आपको माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर से। तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ये सिर्फ किस लिए यूज होती है कि आपको सपोर्ट करने के लिए, कि हाँ प्रेशर, अगर आप हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। आपको कहां से ये अप्रोच पता चल रही है? उसको मॉलिक्यूल का बिहेवियर देख के। ठीक है, तो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच सिर्फ वहीं पर सपोर्टिंग के लिए यूज होती है, कहां पर? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। तो जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में, और हम कहते हैं कि अगर चलो हीट रिजेक्ट करी है तो अब क्या होगा, उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये हमने कहां से निकाला? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच से। तो ये सिर्फ एक सपोर्ट कर रही है किसको? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को। ये हो गया इसका फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन, अगर इफ आवर सिस्टम इज इन वैक्यूम, अगर हमारा सिस्टम कहाँ है? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम आर वेरी वेरी लेस, then we cannot apply the macroscopic approach. Okay, so it will be clear in the next topic, that is concept of continuum. So that is clear to you? ये clear है बेटा? फिर एक बार सेकंड पॉइंट Yes, sir. सेकंड कौन सा पॉइंट? सेकंड बेटा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम आ रहा है उसमें क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. This is very important concept. Okay, so the word continuum is made by the two words, that is continuous and medium. So this is continuous and this is medium. So from these two words the word continuum is made. Okay, so what is the meaning of that term continuum? The meaning of this term is that matter is considered as a continuous distribution of mass and there is no gap or void between the molecules. Let's understand it. इसका मतलब यह है कि कोई भी हम मैटर लें, कोई भी सब्सटेंस लें, वो मॉलिक्यूल से बना होगा, और जो उसमें मॉलिक्यूल्स है या मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर फॉर द सिस्टम, वो या एंटायर मैटर में क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी मास होगा, और वहां पर जो भी कोई भी मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी गैप या वॉइड नहीं होगा. ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? सॉलिड. सो इन द सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. In a liquid there is some distance, and in the gas the intermolecular distance is more. Okay, so if we are considering the solid, there is no gap,
and in the liquid also there is no gap. So the concept of continuum generally is made for the gases only. Okay, so whenever we are talking about gas, we have to check the validity of concept of continuum. Okay, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा. हाँ आदित्य, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, फिर उसके बाद आप डाउट पूछिए. सर इसमें ये दिक्कत थी कि सर यहाँ पे वाइड तो दिख रही है जो मॉलिक्यूल के बीच में है. वॉइड तो मतलब तो फिर जैसे आप कैसे मान बोल लीजिए मॉलिक्यूल गैप, एक मॉलिक्यूल गैप कर दूं तो वॉइड आ गया नहीं आ गया? गैप और गैप आ गया ना यहाँ पर. अगर मैं एक मॉलिक्यूल गैप कर दूं यहाँ से तो वॉइड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इन दैट केस वो बीच सर वो जो बीच बीच में अभी भी दिखाई दे रहा है, वो जो वाइड दिखाई दे रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में. एक्चुअली क्या है, मैंने अभी आपको फिर से बताया कि हम ये बहुत ज्यादा जूम इन में है, हम ये बहुत ज्यादा जूम इन में है. अगर सिर्फ 1 mm³ आप वाटर का कंसीडर करेंगे तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 10⁻16 अराउंड. तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आपको अभी दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लोजअप में हैं उसके. 1 mm³ में इतने मॉलिक्यूल्स बताए मैंने आपको वाटर में. ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सॉलिड में उससे भी ज्यादा होते हैं. तो सॉलिड और लिक्विड के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड ऑटोमेटिकली होता है. बट इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ गैसेस, वी हैव टू चेक द वैलिडिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम. ओके, फिर से एक बार समझा रहा हूं, फिर से समझिए. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का ये तो समझ में आ गया कि दो वर्ड से बना है, कंटिन्यूअस एंड मीडियम. सो यहां से कंटिन्यू यहां से लिया है, यूएम यहां से आया, तो वर्ड बन गया कॉन्टिनम. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि कोई भी जो मैटर है उसमें जो मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से है कि कहीं पे भी वॉइड या गैप नहीं है. ओके, अब वो जो ये वाला गैप दिख रहा है आपको, इसकी बात कर रहे होगे, ये कंसीडर नहीं बेटा. ठीक है, ये कंसीडर नहीं होगा. ठीक है, ऐसा जैसे अब मान लीजिए इवन यहाँ तो गैप और ज्यादा है. इसको भी, लिक्विड को भी मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है. ठीक है, बट इन गैसेस क्या है कि उनमें भी और ज्यादा गैप है, मगर फिर भी वहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड होता है. अब उसके लिए क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट विल बी क्लियर टू यू. ओके, वो आपको क्लियर हो जाएगा. यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर. ओके. Suppose we have a gas. Okay, suppose we have a gas in a system and we are considering a very tiny or small volume in the system. अभी मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम जो है ये क्या है, एक आइडियलाइजेशन है. सिर्फ ये एक आइडियल कंडीशन है जो हमको क्या अलाउ करती है कि हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अपनी लगा पाए. क्या अलाउ करती है कि हम अपने आप जो अपने सिस्टम है उसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगा पाए. अगर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं होगा तो हम ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसको नहीं लगा पाएंगे सिस्टम में अपने. फिर से समझिए कि ये क्या है. पहली बात तो एक आइडियलाइजेशन है जो हमको अलाउ करता है टू स्टडी एनी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. ठीक है, द क्वांटम idealization allow us to treat properties as a point function and to assume the property vary continuously in the space with no jump discontinuity. अब ये बेटा स्टेटमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ा है. ठीक है, इसको समझने के लिए आप सिंपल ये समझिए कि मान लीजिए ये कोई सिस्टम है आपका. ठीक है, अगर आप इस जगह पे टेम्परेचर नापेंगे तो मान लीजिए 20 डिग्री आ रहा है. अगर आप इस जगह पे मेजर करेंगे तो 20 डिग्री आ रहा है. अगर इस जगह पे मेजर करेंगे तो भी 20 आ रहा है. इस सिस्टम के अंदर कहीं पे भी आप टेम्परेचर मेजर कर लीजिए, वो क्या आएगा, 20 डिग्री आएगा. इसका मतलब क्या है, सिस्टम कॉन्टिनम है. प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, दे आर कंटिन्यूअसली. ठीक है, दीज आर द पॉइंट फंक्शन. यानी कि आप किसी पॉइंट पे आप कोई प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं या इसी पॉइंट पे भी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. अभी आपने 20 नापा, थोड़ी देर बाद आप नापेंगे वो भी 20 आएगा, तब भी 20 आएगा. थोड़ी देर बाद और नापेंगे, अगर कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, कोई हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी. ओके, देन वी कैन से द सिस्टम इज इन कॉन्टिनम. अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको. ठीक है, अभी और आगे चलते रहिए तो और ज्यादा क्लियर होगा. देखिए, आपको समझ अपने आप की खुद डेवलप करनी पड़ेगी इसके लिए. ठीक है, द आइडियलाइजेशन इज वैलिड एज लॉन्ग एज the size of the system we deal with is large relative to the space between the molecules. ठीक है,
अगर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वॉइड कब आएगा, जैसे मैं आप दिखा रहे थे कि वॉइड आ रहा है, तो वॉइड कब कहेंगे कि वॉइड है? अगर मान लीजिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इनकी डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस पूरे सिस्टम की डिस्टेंस के बराबर या कुछ पार्ट छोटी हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड नहीं होगा। जब हमारे एक छोटे से वॉल्यूम में इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, बेटा यहां पर रिस्पॉन्स करते रहो, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब भी मैं कुछ पूछता हूं तो आप उसका रिस्पॉन्स करिए। मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस पूरे सिस्टम की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटी है तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम वैलिड है। अगर ये डिस्टेंस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ गई, आपस में बहुत ज्यादा हो गई, तो हम तब नहीं कह सकते ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम लग रहा है सिस्टम में, यानी कि तब वहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम उस वाले सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि सिस्टम किस में हो, वैक्यूम में हो। जब सिस्टम वैक्यूम में होगा तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे सिस्टम में वो बहुत कम होंगे, और उस केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंड दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द सिस्टम डायमेंशन। देन इन दैट केस we can say the concept of continuum is not valid for this system. Okay, it means that our system is not continuum. Clear? यस सर पर जितने भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होंगे, जो भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, Yes. उसमें तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम फॉलो करेंगे, Yes. क्योंकि वहाँ पे सर प्रॉपर्टी तो चेंज होती नहीं है बिल्कुल भी। Yes. Absolutely correct. Okay. So let's move. Up suppose we have consider a tiny volume inside a system. हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया है। अब इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली मूव हियर एंड देयर। ओके, तो अब इस वाले सिस्टम के अंदर जैसे मान लीजिए अब यहाँ से अभी ये किसी इंस्टेंट पे पिक्चर ले रखी है। अगर ये मान लीजिए वीडियो होता तो ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली इन आउट हो रहे होते। यस सर। कोई भी सिस्टम, कोई भी मैटर होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा, द मॉलिक्यूल्स विल डू रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स तो कंटिन्यूअसली मोशन करते रहेंगे, दे हैव द काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली। तो अगर हमने मान लीजिए कोई छोटा सा वॉल्यूम लिया सिस्टम के अंदर और उसके अंदर कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वी आर मेजरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम फॉर दिस वॉल्यूम। इफ the value of the property is not changing, it means our system is continuous or continuum। क्योंकि क्या है, इस वाले वॉल्यूम के लिए प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है, यानी कि मॉलिक्यूल कितने भी आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर यही सिस्टम कैसा होता कि इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स होते और वो रैंडम मूव कर रहे होते, तो ऐसा हो सकता था कि कभी यहाँ इस वाले वॉल्यूम के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते, या कभी हो सकता था इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल होता। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में पढ़ा था। अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स की अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे सिस्टम के अंदर, तो जो हम छोटा सा वॉल्यूम ले रहे हैं जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी नाप रहे हैं, तो वहां पर क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रह रहे हैं। चेंज अभी भी हो रहा है मगर अभी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं कि अगर मान लीजिए ये तीनों इधर से गए तो तीन और 4 इधर से एंटर हो जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली जो वो वहां पर जो प्रॉपर्टी आ रही है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो वेरी नहीं कर रही है। इन केस अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर वेरी लेस, इन दैट केस यहां पर क्या होता है, कभी 3 मॉलिक्यूल्स होते, कभी 2 होते, कभी 1 होता, कभी कोई होता ही नहीं। तो इन दैट केस we are not able to define the property. Okay, so in that case we can say our matter is not continuous or continuum. Clear? अब इसको डिफाइन करने का इससे भी अच्छा तरीका, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर घुस के तो देख नहीं सकते कि कैसे हो रहा है, तो वी आर कंसिडरिंग एक नंबर होता है बेटा, उसको बोलते हैं, क्या हो गया इसको, ठीक है, एक नंबर होता है नट्सन नंबर, उसको कैलकुलेट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ नट्सन नंबर वी कैन से अ सिस्टम इज कॉन्टिनम और नॉट। इफ द वैल्यू ऑफ नट्सन नंबर इज लेस देन 0.01 देन वी कैन से आवर सिस्टम इज कॉन्टिनम।
So the value of Knudsen number is calculated with the help of mean free path and the characteristic length of the system. So what is the characteristic length of the system? Characteristic length, जैसे system है कोई, उसका diameter is the characteristic length of the system. And what is the mean free path? So the distance between the two molecules is known as mean free path. So the ratio of mean free path to the characteristic length of the system is known as Knudsen number. So if the value of the Knudsen number is less than 0.01, then we can say our system is quantum. So you can assume that if our diameter is 1 meter, if our diameter is 1 meter, what is the mean free path? Can you tell me? Can you tell me what is the mean free path? If our characteristic length of the system, what is the characteristic length of the system? Diameter of the system. अरे कुछ सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? आकाश बेटा सिर के ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है सर समझ में अभी थोड़ा देख अच्छा अच्छा, ये बताइए अगर बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, आपको इसका ये करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा आपको इसकी भी समझ बन जाएगी, ठीक है? तो पहले ये समझिए, इफ व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ द सिस्टम? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है सिस्टम की? सर डायमीटर या लेंथ जो भी मतलब छोटी डायमेंशन होगी उसको हम देख लेंगे. ओके, तो सिलेंडर है तो जनरल लेंथ इज मोर देन डायमीटर, सो वी विल टेक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ एज अ डायमीटर. ओके, so what is mean free path? The distance between the two molecules. So the ratio of mean free path divided by characteristic length of the system define the Knudsen number. Okay, so if the Knudsen number is less than 0.01, then we can say the concept of quantum is valid. So if our diameter is 1 meter, so what should be the minimum? What should be the minimum mean free path? क्या होगा बेटा? Knudsen number कितना रख देंगे यहाँ पर? सर 0.01 meter. 01 मीटर. Okay, so this number is a dimensionless number. इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है. ओके, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगी मिनिमम जो लेंथ है? 0.01 मीटर. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ Knudsen नंबर वी कैन डिफाइन आवर सिस्टम इज क्वांटम और नॉट. क्लियर? Yes sir. Okay, so this topic is relatively tough. Okay, so we will move to our next topic, that is energy and its form. So can anybody in the class define energy? What is energy? What is energy? What is energy? Hers? Yes sir. What is energy? Energy is the form of heat. Yes. Energy is the form of heat. Form of heat? नहीं. Can neither Energy create nor be destroyed, but change into one form to another form. Any example of any energy? Nuclear energy. Nuclear energy, very good. So kinetic energy, potential energy, Electrical energy, mechanical energy. Is defined Solar which has the energy. is defined which has the ability to change. Which has ability to change. जो भी कोई change ला सकता है वो उसको क्या कहेंगे? Energy. If this energy is due to the velocity or velocity of the object, then we say this object has kinetic energy. If it is due to the position, then we say potential energy. Okay, so energy can exist in the numerous forms such as thermal, mechanical, kinetic, potential, electric, magnetic, chemical, nuclear. Okay, so these are the different form of energies. And when we are talking about total energy, it means it is the sum of all the energy. Suppose we are considering a system. If system has thermal energy, mechanical energy, kinetic energy, potential energy, then the total energy is the sum of these energy. Okay, so it is denoted by capital E.
the total energy of a system on a unit mass basis is denoted by small e, and it is expressed as capital E divided by m. So can you tell me what we call the small e? Small e को क्या बोलेंगे बेटा? Small e को क्या बोलेंगे? Small e को क्या बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट मास। एनर्जी पर यूनिट मास तो है, इसका एक अलग से नाम भी बताया था मैंने आपको, specific energy. very good, specific energy. Okay, so if we are defining the total energy per unit mass of the system, then we can say this is the specific energy. Okay, and the specific energy is which property? Extensive or intensive? Intensive. Intensive properties which do not depend upon the mass. Okay. So in thermodynamic analysis, it is often helpful to consider the various form of energy and that make up the total energy. तो बहुत सारी energies होती हैं thermodynamics में, जनरली हम उनको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं. फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ एनर्जी एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. तो दो जो टोटल एनर्जी है हमने उसको टू ग्रुप्स में तोड़ लिया है. एक मैक्रोस्कोपिक जो हमको दिख रही है बड़े बड़े लेवल पे, और एक दूसरा जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एसोसिएटेड है. ठीक है, ऐसी एनर्जी जो ड्यू टू द velocity of kinetic energy of molecules और rotational energy of molecule और electric energy of molecule, जो molecule से associated है that is microscopic energy, और जो broader level पे दिख रही है that is macroscopic energy. Okay, so macroscopic energy के अंदर कौन कौन सी एनर्जी आती है? kinetic energy and potential energy. ठीक है, and माइक्रोस्कोपिक एनर्जी के अंदर कौन सी आ रही है? माइक्रोस्कोपिक में जो मॉलिक्यूलर के साथ अटैच है. तो मॉलिक्यूलर के साथ जो अटैच है उसमें भी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आती है, बट दिस इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी अलग है, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी अलग है, बट जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है वो ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स है. ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट thermodynamic system, so generally the change in the kinetic and potential energy is negligible in our case because our system is fixed. हमारा सिस्टम क्या होता है? फिक्स रहता है जनरली. अगर इफ इट इज क्लोज सिस्टम, इन केस ऑफ ओपन सिस्टम देयर इज अ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, बट इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम द चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब नाउ वी हैव डिफाइंड द एनर्जी, बट सर ऊपर वाला समझ में नहीं आया कुछ. ओके, एक सेकंड बेटा, पानी. ओके, ऊपर वाला क्या समझ में नहीं आया बेटा? देखो, इफ योर सिस्टम इज अ ओपन सिस्टम, आपका सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम. सो फ्लूइड इज एंड मास इज एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम, देन योर सिस्टम इज ओपन सिस्टम. यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है बेटा? ओके, सो इफ योर सिस्टम इज ओपन, सो इफ फ्लूइड, समझ लीजिए आपको कोई सिस्टम है जिसमें वाटर एंटर कर रहा है. ओके, so if water is entering with some velocity, then this water has some kinetic energy. Okay, and when water leave with different velocity, then it has different kinetic velocity. Like example, nozzle. In nozzle, the fluid enter with a low velocity and exit the system with high velocity. So there is a change in kinetic energy. Clear? यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर. तो ये वाली कैसी है? ये आपको पता चल रहा है ना कि सिस्टम की इतनी वेलोसिटी से आ रहा था, उतनी वेलोसिटी से निकला बाहर. तो आप इस एनर्जी को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं इस एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को? आपको फील हो रहा है ना ये, बट जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी वो आपको फील नहीं होगी. अब जो आपका लिक्विड है दैट इज मेड बाय मॉलिक्यूल्स, तो वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. अब उस लिक्विड के अंदर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, थाउजेंड्स, एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर विद सम वेलोसिटी इनसाइड द फ्लूइड, बट यू कैन नॉट फील दैट वेलोसिटी. सो द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल्स कम्स अंडर द माइक्रोस्कोपिक पार्ट. नहीं आया समझ में? आया सर. इसका मतलब ये हुआ ना कि जो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है वो माइक्रोस्कोपिक होगी, अगर एज अ सिस्टम को हम होल लेके चलेंगे तो माइक्रोस्कोपिक होगी. हाँ, मतलब जो हमको फील हो जा रहा है, जो हमको दिख जा रहा है,
जिसको हम फील कर पा रहे हैं, जिसको हम देख सकते हैं कि हाँ ये सर वाटर का पूरा अंदर बाहर आना वो माइक्रोस्कोपिक होगी, बाकी और वाटर के मॉलिक्यूल का जब चेक करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक होगी। हाँ, तो उसको हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम चेक नहीं कर सकते ऐसे कि मॉलिक्यूल लेवल पे जाने के लिए फिर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा। अभी इस चीज को यहाँ पे लीव कर दीजिए। अगला टॉपिक जब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एक टर्म पढ़ाऊंगा इंटरनल एनर्जी, तब उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को छोड़ दीजिए, अभी वहां पे क्लियर हो जाएगा आपको ये, ठीक है, क्लियर बेटा। तब तक के लिए इस चीज को यहाँ पे लीव कर दीजिए। सो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी स्टोर इन द सिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप की एनर्जी हो गई जो मतलब सिस्टम के अंदर स्टोर हो सकती है। मगर जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, सिस्टम से एनर्जी बाहर जाएगी या सिस्टम के अंदर आएगी, वो सिर्फ 2 ही फॉर्म में आ सकती है। कौन कौन सी? एक आ सकती है हीट ट्रांसफर की तरफ से और दूसरी आ सकती है वर्क ट्रांसफर की तरफ से। क्लियर? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम और टू द सिस्टम always take place in form of heat transfer and work transfer. So we have understand the kinetic energy, potential energy, nuclear energy, thermal energy. So these are the different form of energy, and energy can store inside the system. Energy can store inside the system, but when energy cross the boundary of the system, it must be in the form of heat and work. Either heat or वर्क, या तो हीट के फॉर्म में जाएगी या फिर वर्क की फॉर्म में जाएगी। यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। ओके, यस सर। अब ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये क्या होता है? आप बता सकते हैं हीट ट्रांसफर क्या होता है बेटा? हीट क्या होती है तो बता सकते हो? हीट ट्रांसफर क्या होती है? जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वहां पे हीट ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। अच्छा, so the energy transfer by the virtue of temperature difference is known as heat transfer. तो जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको क्या बोलेंगे? हीट ट्रांसफर। दैट इज क्लियर? सो डेफिनेशन क्या लिखी है? यस सर। हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम, आइदर सिस्टम और सराउंडिंग, बाय द virtue of temperature difference. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम या सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम तभी हीट फ्लो होगी जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? टाइप कर सकते हो बेटा? ओके, सो हीट इज द ट्रांजिएंट क्वांटिटी विच ओनली अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो हीट एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ बाउंड्री पे हम क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इफ इट इज इनसाइड द सिस्टम देन इट इज एनर्जी, okay, when it is exit outside the system then it is also energy, but when it is at boundary then we can say only it is a heat. Clear? Clear? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटा? सर रिपीट अगेन। ओके, जब भी क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम के अंदर एनर्जी है, ठीक है, वो एनर्जी सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है, तो वो 2 ही फॉर्म में जा सकती है, या तो हीट की फॉर्म में या तो वर्क की फॉर्म में, ठीक है। जब तक वो सिस्टम के अंदर है तब तक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जैसे ही वो बाहर चले गई सिस्टम के बाहर तब भी वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बट जब वो बाउंड्री पे है तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये हीट है, यानी कि ये हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? क्योंकि ये जो टर्म है, 2 टर्म जो बनाई है, हीट और वर्क, ये दोनों बाउंड्री फिनोमिना है। ये सिर्फ तभी अकाउंट में आते हैं जब क्या हम बाउंड्री पे कंसिडर करेंगे। क्लियर? जब ये सिस्टम की बाउंड्री को क्लियर करेंगे, या तो अंदर आएंगे या तो बाहर आएंगे, तभी हम इनको काउंट कर पाएंगे। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इस सिस्टम के अंदर कितनी हीट है, इस सिस्टम के अंदर कितनी हीट है। जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगी तभी हम बता पाएंगे कि सिस्टम ने कितनी हीट रिजेक्ट करी है। क्लियर? उससे पहले तक वो क्या होगी? किसी भी एनर्जी की फॉर्म में होगी, थर्मल एनर्जी बोलो चाहे कोई भी एनर्जी बोलो, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री फिनोमिना, हीट को। और सिमिलर सेम केस किसके साथ है? वर्क के साथ है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें साइन कन्वेंशन, जो आपको याद रखना है। अगर हीट जो है सिस्टम रिसीव करेगा, हीट रिसीव्ड बाय अ सिस्टम इज पॉजिटिव। तो जब भी सिस्टम को हीट मिलेगी तो आप उसको कैसे लेंगे? प्लस क्यू। अगर मान लीजिए 100 किलो जूल हीट मिल रही है सिस्टम को, तो क्या आप बोलेंगे उसको हीट ट्रांसफर क्या हुआ है? प्लस 100 किलो जूल। अगर सिस्टम रिजेक्ट करेगा
हीट को, अगर सिस्टम के अंदर से हीट बाहर सराउंडिंग में जाएगी या किसी दूसरे सिस्टम में जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, -100 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है। क्लियर? तो ऑब्वियस हो जाएगा कि आप माइनस और प्लस से ही आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलता हूं कि 50 प्लस 50 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है, तो कहां से कहां को हुई है, सिस्टम से सराउंडिंग को कि सराउंडिंग से सिस्टम को? सराउंडिंग से सिस्टम को। वेरी गुड। और अगर मैं बोलूं कि -50 किलो जूल हीट ट्रांसफर हुई है तो कहां से कहां को हुई है? सिस्टम से सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग को। ओके, क्लियर? तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि हीट इज इक्वलेंट टू मनी। किसके इक्वलेंट है हीट, बताओगे? मनी के। और आप क्या है, सिस्टम है। ठीक है, तो पैसा आएगा तो कैसा लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। और पैसा देना नेगेटिव। याद रहेगा आप, heat is equivalent to जी money. सर। Heat is transferred to the system then positive and heat is transferred by the system then negative. याद रहेगा? सर। Okay. So next term, that is work. Okay. So similar to the heat transfer, work transfer is also a boundary phenomena. So we will discuss in detail work transfer in the next lecture. So अभी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे ही आज आपने बहुत टफ टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो जो ये वर्क ट्रांसफर होता है ये भी बाउंड्री फिनोमेना है। ये भी तभी अप्रिशिएट होगा जब क्या होगा, जब ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा होगा। तो जैसे ही ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी हम क्या कह सकते हैं, वर्क ट्रांसफर हुआ है, लाइक सिमिलर टू द हीट ट्रांसफर। तो इनसाइड अ सिस्टम वी हैव सम एनर्जी, व्हेन इट इज क्रॉसिंग द बाउंड्री and it is not due to the temperature difference, then we can say it must be a work transfer। क्योंकि जो सिस्टम है उससे एनर्जी सिर्फ दो ही फॉर्म में जा सकती है, या तो हीट की फॉर्म में या फिर वर्क की फॉर्म में। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से गई है तब तो वो हीट ट्रांसफर है, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं गई है तो फिर यानी कि इसका मतलब वो दूसरा क्या बचता है, वर्क ट्रांसफर है। क्लियर? यस सर। ओके। तो अब वर्क क्या होता है, वर्क सिंपली डिफाइन करेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप किसी ब्लॉक को कुछ फोर्स लगा के मूव करेंगे तो यानी कि आपने क्या किया है, कुछ वर्क किया है और जो सिस्टम था उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, तो यानी कि वर्क हुआ है। क्लियर? सो वर्क इज जनरली डिफाइंड बाय द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे डिफाइन करते हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट किस में मेजर करते हैं? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की क्या होती है यूनिट? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर जूल। ओके, क्लियर? अब ये वर्क की साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर क्या हुआ है, सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। तो जब भी सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे तो पॉजिटिव होगा, और जब भी सराउंडिंग वर्क करेगी सिस्टम पे तो नेगेटिव होगा। इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर, जब हीट ट्रांसफर होती सिस्टम में फ्रॉम द सराउंडिंग, तो जब हीट मिल रही थी सिस्टम को तो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? अरे रिस्पॉन्स दोगे बेटा? जब हीट ट्रांसफर हुई सराउंडिंग से सिस्टम को तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव था। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, सर नेगेटिव था। बेटा हीट ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग से सिस्टम में, तो हीट इज इक्विवेलेंट। अच्छा सर रिसीव्ड। हाँ अच्छा सर रिसीव्ड सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अगर वर्क डन हुआ है ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग ने वर्क किया है सिस्टम के ऊपर तो नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो आपने जैसे हीट को लिया था इक्विवेलेंट टू मनी, और मनी ट्रांसफर जब सिस्टम में हो रहा था तो पॉजिटिव, और जब सिस्टम लेक्चर टाइम हो गया सर। कौन बोल रहा है बेटा? सर अभिषेक। कौन बोल? अभिषेक बेटा, यू कैन लीव, यू कैन लीव बेटा। ओके, सो एंड व्हेन सराउंडिंग, चलिए ठीक है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक आपका फॉर्म वहां पर रखा होगा,
एक फॉर्म आया होगा आपकी गूगल क्लास में, आप उसको उसको करेंगे, ठीक है। तो जो ये एक उसमें करने के लिए आपको ये मुझे लगा था ये चीजें डिस्कस हो जाएंगी। तो जो ये हीट और वर्क ट्रांसफर होते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। जो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर होते हैं ये प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, बट जो एनर्जी होती है वो वर्क ट्रांसफर होती है। क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? क्या बोला मैंने? आकाश, कैन यू रिपीट? Sir, heat and work are not the properties of the system. Heat and work are not the properties of a system, but energy is a system. वो sir property होती है system की. Energy is the property of the system. You can do the assignment. Quiz now. Okay? इसको कर लीजिए आप। Sir. हाँ बेटा। Yes. Sir, what is the syllabus of tomorrow class test? बेटा हाँ सॉरी ये तो डिस्कस हुआ ही नहीं, जहाँ जितना आज तक अभी तक कवर हो चुका है। ओके Okay, sir. ऑल द टॉपिक विच आर कवर्ड टिल डेट। ओके तो जितना भी हमने आज तक कर लिया है वो सारा है। मैं आपको नोट्स मैंने आपको सारे अपलोड कर दिए हैं, वीडियोस अपलोड हैं, पीपीटी बची होगी 1 सेकंड वाले की, मैं वो भी अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है बेटा? एनीथिंग एल्स? कुछ और? No, sir. ये कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम और ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक अगर इनको एक बार आप पढ़ लीजिए, अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। ओके चलिए बेटा आप भी लंच कीजिए। Thank you sir.